is 11th August. Now, why there is a need of CPU scheduling? जितने भी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या होता है, रेडी क्यू में देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस वेटिंग फॉर देयर टर्न टू एग्जीक्यूट, ठीक है. सो सीपीयू शेड्यूलिंग बेसिकली क्या होता है, सीपीयू को असाइन करना किसी प्रोसेस को, दैट इज नोन एज शेड्यूलिंग, शेड्यूल करना. सपोज देयर आर 10 प्रोसेसेस waiting in ready queue, ठीक है, and we have only one CPU. This is a red. ठीक है, so there are suppose 10 processes. इस तरह से number of processes आपकी 10 तक process है, and they are waiting for execution, and we have only one CPU. There is uniprocessor. तो scheduling क्या होती है? What is CPU scheduling? To assign to short term scheduler क्या करता है? It picks one process from the ready state and उसको execution के लिए send कर देता है, ठीक है. मतलब जो select करने का काम होता है वो short term scheduler का होता है. So short term scheduler selects one of the processes from the ready queue for execution, ठीक है. Then dispatcher क्या करता है? Dispatcher उस selected process को CPU assign करता है ना? ऐसे ही बताया था ना मैंने. Now what is CPU scheduling? Scheduling means कि किस process को select करना है और CPU assign करना है. मतलब short term scheduler को किस process को select करना है, उसके लिए कुछ algorithms होती हैं. There are some algorithms, ठीक है. तो कौन सी algorithm को choose कौन सी algorithm को use करके किस process को select करना है CPU assign करने के लिए, that is scheduling, ठीक है. So we'll study what are the different algorithms in CPU scheduling. So CPU scheduling is the basis of any multi-programming operating system. It is the basis of any multi-programming operating system. And you already know what is preemptive and non-preemptive. Yes, ma'am. So CPU scheduling can be of two types. Preemptive scheduling and non-preemptive scheduling. So preemptive scheduling, what do you mean by preemptive scheduling? When a process is already running and you stop it, या तो उसको input output operation perform करना है, so it will go into the wait or block state. और other condition क्या हो सकती है? Some more priority process arrives
तो हम जो पर्टिकुलर जो रनिंग प्रोसेस उसको हम वेट एंड ब्लॉक में सेंड कर देते हैं, सॉरी रेडी क्यू में सेंड कर देते हैं. प्रीएम्प्टिव मीन्स कि रनिंग प्रोसेस को आप इन बिटवीन स्टॉप कर रहे हो एंड सम अदर प्रोसेस को सीपीयू असाइन कर रहे हो, दैट इज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. So when a running process is halt in between, may be due to arrival of high priority process or the running process wants to perform some input output operation. So it goes into the wait and block, है ना. तो इस तरह की कोई सिचुएशन होती है जब हम बीच में किसी प्रोसेस को होल्ड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. Now, there's another category that is non-preemptive scheduling. So non-preemptive scheduling में क्या होता है? We cannot stop a running process. If a process is running, we cannot disturb that process in between. जब तक कि वो खुद अपना execution complete करके बाहर नहीं आता है. ठीक है? So these are two categories. So whatever algorithms we will study, then they may be preemptive or non-preemptive. Now, before starting with the algorithms, we'll study some terms related to the processes. हम बोलते हैं शेड्यूलिंग क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं. ठीक है, these terminologies I use in the algorithm while we study the algorithms. So we must know in advance. So what are the scheduling criteria? First of all, we have CPU utilization. Now, what do you mean by CPU utilization? CPU utilization का मतलब होता है it may be between 0 and 100, 0 to 100. ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है 0 से 100 हो सकता है. तो 100, what do you mean by 100%? That means if you have one CPU, you are completely utilizing it. मतलब there is no idle time for the CPU. CPU थोड़ी देर के लिए भी फ्री नहीं हो रहा है, completely वो complete execution कर रहा है. और अगर suppose CPU is sitting idle, it is not executing any process, then it is 0% utilization. So CPU utilization 0 से 100% के बीच में वेरी करता है. तो CPU utilization we want it to be maximum. And that is the main purpose कि हमारा जो CPU maximum utilization होता रहे उसका. ठीक है.
So we have to keep this, we want to keep the CPU as busy as possible. Keep CPU so it may range from 0 to 100. Zero to 100%. ठीक है? This is for normal. अगर हम real time systems की बात करेंगे तो then it should be from 40 to 90% CPU utilization होना चाहिए real time systems में. This is for normal systems we are talking about. So in real time systems, RTS का मतलब है real time systems. It must be in between 40 to 90%. 40% किसके लिए होगा? जो lightly, अगर आपका system lightly loaded है, then it must be 40% utilization को भी होना चाहिए. If it is heavily loaded, बहुत ज़्यादा processes है heavily loaded है, then it means कि 90% तक हम चाहते हैं कि हमारा utilization हो. This we are talking about the real time system. Real time system मैंने बताया था आपको previous classes में what is real time system, है ना? Where deadline is important. You have to finish your task in on exact time. Then second we have throughput. तो throughput क्या होता है? The number of processes that are completed per unit time is known as throughput. The number of processes ठीक है. So when we will discuss the algorithms, we will see the throughput क्या है उस algorithm का, मतलब वो कितनी processes को complete कर रहा है एक particular time में. Suppose we are talking about one minute. 1 minute में कोई algorithm कितनी processes को execute कर पा रही है, तो that is throughput. The number of processes that are completed per unit of time. ठीक है? It's called throughput. So it may be this per unit of time कुछ भी हो सकता है. We are talking about 1 minute, 5 minutes, 1 hour. अगर बहुत लंबी processes है तो 1 hour भी हो सकता है. So it depends on the execution time of the process. हम per unit time हम कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है? ये clear है? So these are the parameters. जैसे CPU utilization आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका CPU busy रहे. Then throughput भी आपका you will आप चाहोगे कि थ्रूपुट भी आपका मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस हमारी एग्जीक्यूट हो पाए पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. देन थर्ड वी हैव टर्न अराउंड टाइम. किसका फोन? आपका है? ये क्या है? ना किसी का कॉल आ रहा है तो भी नहीं. ठीक है. So this is now we'll see what is turnaround time.
ठीक है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जैसे कि प्रोसेस ने अराइव किया, ठीक है, सपोज ने जिस टाइम पे अराइव किया, ठीक है, अराइव करने के बाद उसको रेडी क्यू में वेट करना होगा कुछ टाइम के लिए, इट हैज टू वेट इन द रेडी क्यू, देन उसको सीपीयू अलॉट हो जाएगा, देन सीपीयू अलॉट होने के बाद मे बी इट इज पॉसिबल दैट इट गोज फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन द वेट एंड ब्लॉक स्टेट, again it will come in the ready queue, then again CPU will be assigned. So this whole time when the process is arrived, जब वो process ready queue ready state में आई है and वो रनिंग स्टेट से बाहर आ गई, मतलब टर्मिनेट हो गई, this whole time is known as turn around time. Are you getting my point? What is turn around time? The whole time which a process takes for its execution from the arrival time to the टर्मिनेशन टाइम, मतलब जैसे ही प्रोसेस ने एंटर किया उसके बाद जो भी उसने टाइम स्पेंड किया है वेट करने में या रेडी क्यू में या रनिंग स्टेट में या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में, दैट होल अमाउंट ऑफ टाइम इज नोन एज टर्न अराउंड टाइम. ठीक है, सो इट इज द सम ऑफ सपोज जैसे यू आर गोइंग टू अ बैंक, ठीक है, आपको बैंक में कुछ ट्रांजेक्शन करना है, सपोज आपको डीडी बनवाना है, ठीक है, यू वांट टू अ बैंक फॉर मेकिंग अ डीडी. तो वेन एवर यू एंटर द बैंक, जैसे आपका अराइवल टाइम बैंक में आपने एंटर किया, सपोज आपने 12 o'clock पे एंटर किया बैंक, ठीक है, देन यू रिमेन इन दैट क्यू में आप खड़े रहे वेटिंग क्यू में, देन आपका नंबर आया, ठीक है, फिर आपने जो भी फॉर्मेलिटीज थी दैट यू हैव कंप्लीटेड, नाउ यू हैव टू वेट फॉर योर डीडी, 1 to 2 आवर आप वेट करते हो, ठीक है, तो आप यू आर वेटिंग इन द बैंक, देन यू हैव कलेक्टेड योर डीडी एंड यू हैव कम आउट, ठीक है. So this whole time period when you have entered the bank and you have come out of the bank, this whole time is known as turn around time. Similarly, we are talking about the process. Is there any doubt in this? What is turn around time? Because we have to calculate this in all the algorithms. Huh? Is there any doubt? No, ma'am. No, ma'am. So this time it is a sum of time periods spent waiting to get into the memory, waiting in ready queue, executing the CPU, executing on the CPU, and doing input output. So this whole time is known as input turnaround time.
You will understand while we'll study the algorithms, किस तरह से calculate किया जाता है. Then we have waiting time. So what is waiting time? It is the sum of the periods spent waiting in the ready queue. ठीक है, कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में कितना वेट कर रही है, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज नोन एज वेटिंग टाइम. हम उसके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टाइम को इंक्लूड नहीं करेंगे वेटिंग टाइम में. Input out while the process is doing its input output operation, that time is not included in the waiting time because that process is busy itself in doing some operations. It is not waiting for something. So waiting time is the only time when the process waits in the ready queue. Doubt you can ask. So it is the sum of periods spent waiting in the ready queue. Suppose your process is in the wait and block. ठीक है, मतलब वो execute हो रही है, then input output करने के लिए that process goes into the wait and block. Again wait and block से उसको ready queue में आना पड़ेगा, ready queue में फिर कुछ time wait करना पड़ेगा. That whole amount of time कि मतलब एक बार wait किया फिर दोबारा उसने उसी ready queue में wait किया, that sum of periods spent waiting in the ready queue. This is waiting time. Then we have response time. Response time क्या है कि when a process is arrived, मतलब it is in the ready queue, उसको जैसे ही इसको फर्स्ट रेस्पॉन्स मिलता है, फर्स्ट रेस्पॉन्स मतलब उसको सीपीयू एग्जीक्यूट करने के लिए मिलता है, दैट इज नोन एज रेस्पॉन्स टाइम. देन इस रेस्पॉन्स टाइम में हो सकता है कि दैट प्रोसेस वांट्स टू परफॉर्म सम इनपुट आउटपुट या कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आती है तो अगेन वो वेट या ब्लॉक या रेडी क्यू में चला जाएगा. लेकिन वो टाइम हमें इंक्लूड नहीं करना, हमें उसको ये रेस्पॉन्स टाइम इज द फर्स्ट टाइम रेस्पॉन्स, उसको फर्स्ट रेस्पॉन्स कब मिल रहा है. ठीक है, सपोज आप बैंक जा रहे हो, आपको डीडी बनवाना है, तो आपको जो फर्स्ट रेस्पॉन्स मिला, फर्स्ट रेस्पॉन्स में आपने वो कैश सबमिट किया और डीडी एप्लीकेशन का जो जो आपने फर्स्ट रेस्पॉन्स आपको मिला, दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम. ठीक है, अब सेकंड टाइम आप अपना डीडी कलेक्ट करोगे, दैट इज नॉट द रिस्पॉन्स टाइम. ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला प्रोसेस को, दैट इज रिस्पॉन्स टाइम. So it is the time when the process gets its first response. ठीक है, then there is arrival time भी है. So this is the time when the process arrives into the ready queue. The time when the process
arrives in the ready queue. Is called arrival time of process. ठीक है, so these parameters will be used, these terminologies will use while we'll start with the algorithms. So just take a look on all these parameters, then we'll start with the CPU scheduling algorithm. ठीक है, so I'm giving you 1 minute break. Okay, so we'll start with the first scheduling algorithm. Scheduling algorithms. So the very first algorithm is FCFS, in short we say. First come, first serve. In short we say FCFS. So this FCFS, first come, first serve, is a very simple CPU scheduling algorithm. What happens in this? जो पहले अराइव करेगा, जो फर्स्ट आएगा, उसको सबसे पहले सीपीयू एलोकेट किया जाएगा. जैसे कि यू सी द क्यू इन द बैंक्स, जो पहले आता है दैट पर्सन विल स्टैंड इन द फ्रंट, है ना. जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर में क्यू यू हैव स्टडीड, क्यू होती है ना, जो पहले आया उसको सबसे पहले आपने रिस्पॉन्स दिया, तो सेकंड नंबर पे आया वो क्यू में सेकंड नंबर पे. तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन दे अराइव, ऑन देयर अराइवल टाइम, प्रोसेस जब अराइव हो रही है उसके अराइवल टाइम के बेसिस पे उनको सीपीयू एलोकेट किया जाएगा. दिस इज द बेसिक फंडा कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर अराइवल टाइम द सीपीयू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेसेस. So
when the process arrives yeah, ये लिख देते हैं that CPU is allocated on the basis of process arrival time. On the basis of arrival time. ठीक है, जिस टाइम पे वो प्रोसेस अराइव कर रही है रेडी क्यू में उसके अकॉर्डिंगली सीपीयू एलोकेट किया जाएगा. सो द मेन आप लोग इसमें पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा क्योंकि बिकॉज आई हैव नॉट रिटन द होल पॉइंट्स. किस अगर एग्जाम में आता है तो आपको कैसे लिखना है दैट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द बुक. मेन क्राइटेरिया क्या होता है? अराइवल टाइम. And what mode you are using? This is non-preemptive algorithm. These are two important points. ठीक है? If a process is running, you cannot preempt it in between. Non-preemptive algorithm. These are the two important points. Now, suppose we are taking an example to understand this algorithm. मैंने आपको बर्स्ट टाइम नहीं बताया. Suppose we have some processes which P1, P2, and P3. And their burst time is, burst time आप समझते हो, मैंने लिखवाया नहीं ऊपर शायद. बर्स्ट टाइम मतलब उसे कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, दैट इज नोन एज बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम भी हम इसको बोलते हैं. मैं लिख देती हूँ ऊपर. एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूशन टाइम. बर्स्ट टाइम का मतलब एग्जीक्यूशन टाइम भी है, कितना टाइम दैट प्रोसेस नीड्स टू एग्जीक्यूट. The time required by a process to execute. The time required by a process to execute completely. ठीक है? This is known as burst time या execution time. So suppose we are looking to an example. This is a process और हर एक process का कुछ burst time given है. Suppose first process को 24 milliseconds चाहिए या seconds में हम consider कर लेते हैं. Then second process needs 4 seconds and the second and third needs 4 seconds to execute. Now, suppose इनका arrival time जो है arrival time given है ये 0 टाइम पर अराइव हो रही प्रोसेस, देन ये 1 पर हो रही है, ये 2 पर हो रही है. मतलब अराइवल टाइम मतलब ये 0 सेकंड्स पर अराइव हो रहा है, ये 1 सेकंड्स पे, ये 2 सेकंड्स. ठीक है. नाउ यू हैव टू यूज इस तरह से क्वेश्चन आएगा, यूज एफसीएफएस
scheduling algorithm to calculate average waiting time, total turnaround time, नहीं sorry, average turnaround time, मैम P1 का बर्स्ट टाइम 2 raised to the power 4 है, 24 है. 24 है बेटा, 24 है, ठीक है. 24 सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड्स, तो ये 24 सेकेंड्स में कंप्लीट हो रहा है ना. इसको 24 सेकेंड्स के लिए सीपीयू चाहिए. बर्स्ट टाइम का मतलब इसको एग्जीक्यूट होने के लिए 24 सेकेंड्स के लिए सीपीयू एलोकेट करना चाहिए. इसको 24 सेकेंड्स के लिए इसको चाहिए पड़ेगा. P2 प्रोसेस को 4 सेकेंड्स के लिए सीपीयू चाहिए एंड P3 को भी 4 सेकेंड्स के लिए. अराइवल टाइम मतलब ये कब अराइव हो रहा है, रेडी क्यू में कब किस टाइम पर अराइव कर रहा है. ठीक है, तो हमें FCFS का यूज करके वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम, मतलब कि सारी प्रोसेस का हम एवरेज निकालेंगे. पहले सिंपली हम हर एक प्रोसेस का डिफरेंट individually निकालेंगे. then we have to calculate the average waiting time, then we have to calculate the average turn around time. turn around time क्या होता है, जब वो अराइव हुआ, अराइव होने के बाद एग्जीक्यूट करके बाहर निकल गया, that total amount of time is known as turn around time. ठीक है, these two things we have to calculate. So for all the scheduling algorithms, we'll use Gantt chart. Gantt chart क्या होता है, एक पिक्टोरियल, एक बार ग्राफ के फॉर्म में आप किसी भी रिप्रेजेंट करते हो. जैसे ये आप जो भी एल्गोरिथम शो करोगे इसको इस तरह से शो करोगे. दिस इज योर चार्ट. ठीक है, टाइमिंग डायग्राम, ये एक तरह का एक टाइमिंग डायग्राम है. गैंट चार्ट बोला जाता है इसको, गैंट चार्ट. ठीक है, इसका यूज करेंगे हम. तो इसमें हम क्या बताते हैं, जैसे कि जीरो टाइम है, जीरो टाइम पर अगर कोई प्रोसेस अराइव हो रही है, ये 1 है, ये 2, 3, 4, so in this way we have to represent the processes. ठीक, फिर यहाँ पर सपोज जीरो टाइम पर जो प्रोसेस 1 अराइव हो रही है तो हम लिखेंगे P1. ठीक है, सपोज इट इज टेकिंग 3 सेकेंड्स टू एग्जीक्यूट, तो यहाँ P1 मतलब ये जो 0 से 3 का टाइमिंग है, दैट इज वो टाइम P1 को एलोकेट किया गया, सीपीयू एलोकेट किया गया. ठीक है, सपोज वी आर राइटिंग P2, ये 2 सेकेंड्स के लिए, 4 to 5 एंड 5 to 6 के लिए हमने P2 को दिया. तो इस तरह से हम ये गैंट चार्ट को रिप्रेजेंट, गैंट चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं सारी प्रोसेसेस को. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द प्रोसेसेस, उनका अराइवल टाइम लिख लेते हैं. P1, P2 and P3.
Then we have their arrival time, कि वो कब arrive हो रहा है. This is arriving at 0, 1 and 2. And burst time is already given. That is 24, 3 and 3. मैम 4 और 4 दिया था आपने. Sorry, 4 and 4. ठीक है. So we are drawing a Gantt chart first. और हम इसको FCFS के थ्रू इसको शेड्यूल करेंगे. So this is 0. Now suppose FCFS में क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो सबसे पहले अराइव करेगा उसको CPU एलोकेट किया जाएगा, एंड इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर. हम उसको बीच में स्टॉप नहीं करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन P1 का अराइवल टाइम 0 है, तो 0 पे अगर P1 आया तो उसको सबसे पहले CPU मिल गया. ठीक है. एंड इट इज टेकिंग 24 सेकंड्स टू एग्जीक्यूट. 24 सेकंड्स के लिए इसने CPU को एलोकेट किया हुआ है कि 24 सेकंड्स तक पूरा एग्जीक्यूट करेगा P1 प्रोसेस 1. ठीक है. नाउ एट दिस अराइवल टाइम 1 है ना, 1 पे ऑलरेडी P2 आ चुका है, एंड इट इज वेटिंग फॉर 2 पर, एंड 2 सेकंड्स पे P3 यहाँ पर P1 ने अराइव किया, सॉरी P2 ने अराइव किया, यहाँ P3 में, हियर P1 ने अराइव किया. लेकिन अकॉर्डिंग टू FCFS हमने P1 को CPU एलोकेट कर दिया. 24 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट हुआ. आफ्टर दैट फिर हम चेक करेंगे अराइवल टाइम किसका है, P2 का है. P2 को CPU मिला एंड इट विल एग्जीक्यूट फॉर 4 सेकंड्स. तो 24 से 25, 26, 27, 28 तक ये एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है. 24 सेकंड्स में इसको CPU मिला, देन 24 से 4 सेकंड्स के लिए इसको एग्जीक्यूट होना है. बर्स्ट टाइम 4 है. 25, 26 एंड 27. यहाँ तक इसने कंप्लीटली एग्जीक्यूट किया. नाउ अगेन चेक करेंगे कि अराइवल टाइम नाउ व्हिच प्रोसेस इज वेटिंग इन द रेडी क्यू, P3. देन P3 को CPU मिला, एंड देन इट विल अगेन एग्जीक्यूट फॉर 4 सेकंड्स. तो 29, 30, 31 and it will be 32. इस तरह से Gantt chart के through you have to represent your algorithm. Now we have to calculate the total waiting time and average waiting time and average turnaround time. तो waiting time हम हर एक process का we have to calculate कि क्या है उनका waiting time. So this is the waiting time. देख रहे हैं हम यहाँ पर प्रोसेस P1 को वेट करना पड़ा क्या 1 सेकंड के लिए भी. जैसे ही वो आया उसको CPU मिल गया, तो 0 वेटिंग टाइम प्रोसेस 1 का 0 है. देन प्रोसेस 2 का वेटिंग टाइम आप देखिए, इसने यहाँ पर अराइव किया था और यहाँ तक वो वेट करता रहा. तो दिस इज द वेटिंग टाइम. तो 24 जब उसको 24 माइनस 1 है ना, 24 माइनस 1 करेंगे तो दैट विल बी 23. ठीक है. देन P2 यानी यहाँ पर अराइव किया और उसको CPU मिला 28 पर. तो क्या होगा इसका वेटिंग टाइम, कितना वेट किया उसने, कितने सेकंड्स के लिए वेट किया, 26. 28 पर तो उसको मिल गया था CPU, और 2 पर उसने अराइव किया था, है ना. तो ये 2 सेकंड्स माइनस कर दोगे. कैसे निकाला ये आपने, जब उसको फर्स्ट रेस्पॉन्स मिला, response time
माइनस अराइवल टाइम, यही किया है ना, यहाँ पर भी यही किया था, रेस्पॉन्स टाइम माइनस अराइवल टाइम। रेस्पॉन्स टाइम P2 का था 24 और अराइव उसने कब किया था 1 पर, 24 माइनस 1 किया तो 23 आ गया। ठीक है, वेटिंग टाइम हम कैसे निकालते हैं, कितना वेट किया उसने जब उसको फर्स्ट रेस्पॉन्स मिला, और अराइवल टाइम को हमें माइनस करना है। इसमें कोई डाउट है? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टर्न अराउंड टाइम। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, सबसे पहले जब उसने अराइव किया और उसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर लिया है, दैट होल टाइम इज नोन एज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, फर्स्ट प्रोसेस के लिए, फर्स्ट प्रोसेस में 24 24, ठीक है, 24 इज द टर्न अराउंड टाइम, मतलब उसको सीपीयू यहाँ पर उसने 24 0 पर अराइव किया, 24 को उसने एग्जिट कर दिया, दैट इज 24। P2 का हम चेक करेंगे, P2 यहाँ पर आया था, नहीं सॉरी P2 है यहाँ 27 और उसको उसने 28 पे उसने सीपीयू एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, 28 माइनस 1 है ना, यही होगा ना। We have to subtract the arrival time. P2 यहाँ 28 पे बाहर आ चुका है, सीपीयू एग्जीक्यूट कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, 28 माइनस 1 किया हमने, दैट इज 27। व्हाट वी हैव डन, हमने उसके बर्स्ट टाइम में से क्या माइनस किया, अराइवल टाइम। ठीक है, देन P3 का क्या होगा, 32 माइनस 2 पर उसने अराइव किया था 30। सो दीज आर द फॉर्मूलेज। मैंने उस समय नहीं बताया क्योंकि याद करने में आपको दिक्कत होती, बट बाय लुकिंग एट द गैंट चार्ट यू कैन इजीली कैलकुलेट कि किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है। तो हमने सारी बस टाइम तो सिर्फ 4 ही सेकंड है ना। हाँ 4 सेकेंड है, लेकिन उसने वेट टर्न अराउंड टाइम में हम क्या सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, उसका अराइवल, जब उसने अराइव किया उसके बाद से उसने कितना वेट किया और उसको सीपीयू कंप्लीटली उसने कब एग्जीक्यूट किया, दैट होल टाइम इज नोन एज टर्न अराउंड टाइम। जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल लिया था कि आप बैंक में एंट्री की आपने, मतलब जैसे ही बैंक के अंदर गए आप और आपका डीडी बन रहा है, प्रोसेस हो रहा है, वेट कर रहे हो आप, जब आपके हाथ में डीडी आ जाएगा, दैट होल टाइम इज नोन एज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमें यही देखना है कि प्रोसेस ने कब अराइव किया, प्रोसेस ने अराइव किया 2 पर और उसने सीपीयू कब बाहर निकला, वो सीपीयू एग्जीक्यूट करने के बाद 32 सेकंड्स में। तो 32 माइनस हम 2 करेंगे क्योंकि ये टाइम थोड़ी ना इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ प्रोसेस अराइव ही नहीं हुआ था, है ना। कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं, वेटिंग अब एवरेज टाइम निकालना है। मैम टर्न अराउंड टाइम बेसिकली बर्स्ट टाइम और वेटिंग टाइम का सम है। हाँ, वेटिंग टाइम प्लस, हाँ सब पूरा सम अप है वो। टर्न अराउंड टाइम जो होता है दैट इज अ सम अप ऑफ ऑल अराइवल टाइम, अराइवल टाइम को थोड़ा सम अप करो, एक मिनट, फर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम, ठीक है, ये करना है हमें, फर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम, तो बर्स्ट टाइम क्या है इसका 4 है, 4 प्लस वेटिंग, व्हाट इज द वेटिंग टाइम वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज 26। तो हम इस तरह से करेंगे तो भी आ जाएगा, है ना। तो एक फॉर्मूला तो ये है कि बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम, एंड अनदर फॉर्मूला इज, नहीं यही है फॉर्मूला, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्योंकि वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है रिस्पॉन्स टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो
फर्स्ट टाइम प्लस First रेस्पॉन्स plus टाइम minus arrival. हाँ माइनस अराइवल टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। These are the two formulas for turn around time. तो आप बर्स्ट टाइम में वेटिंग टाइम ऐड कर दो, या फिर आप बर्स्ट टाइम में रिस्पॉन्स टाइम ऐड करो, फिर सॉरी रिस्पॉन्स टाइम में से पहले अराइवल टाइम माइनस करके बर्स्ट टाइम में ऐड करो। अभी भी कोई डाउट है इसमें? No, ma'am. ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम मतलब हर एक प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा। तो एवरेज आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, सबको सम अप करेंगे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, है ना। So average waiting time equals to, we have to sum up all these waiting time, 0 plus 23, 26 plus 26 divided by the average, ऐसे ही निकालते हैं, divided by the number of processes। जी से डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आएगा बताओ? 49 16.33 second. क्या आ रहा है? 16.33 second. 16.33 seconds। ठीक है। तो एवरेज वेटिंग टाइम का मतलब ये हुआ कि हर एक प्रोसेस को कम से कम 16.33 सेकेंड्स वेट करना पड़ रहा है। एंड सेकेंड इज एवरेज turnaround time. Again, we have to sum up all these turnaround time, 24, 27 and 30. 27. 27 है आंसर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम मतलब एक प्रोसेस को अराइव होने के बाद बाहर निकलने के लिए 27 सेकेंड्स लग रहे हैं एवरेज। ठीक है। तो इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि काफी देर तक प्रोसेसेस को, जैसे कि आपने देखा कि जो सेकंड प्रोसेस आई थी उसका वेटिंग टाइम, उसका बर्स्ट टाइम काफी कम था, लेकिन those two processes have to wait for a very longer period, है ना। सपोज यही क्वेश्चन, ठीक है, ये हमने किया एक क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, now using FCFS, calculate average turnaround time and average waiting time. This you have to calculate, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, हमने अराइवल टाइम चेंज कर दिया। पहले आपकी P1 प्रोसेस वाज अराइविंग एट 0 टाइम। नाउ व्हाट वी हैव डन, हमने P1 प्रोसेस को सेकंड मतलब लास्ट में अराइव करवाया। दिस इज योर क्वेश्चन। अब आप इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व इट।
Ma'am, average waiting 8.33 second and average turnaround time is 19 seconds. 12.33. Ma'am, please unmute yourself. So have you done this question? So Yes. Yes, ma'am. ओके तो आप चेक कर लेते हैं एक बार जिसने नहीं किया। अराइवल टाइम 0 है तो 0 पर P1 P2 प्रोसेस अराइव कर रही है, ठीक है। सो हियर P2 इज अराइविंग। नाउ इट विल रन फॉर 4 seconds. So till 4 it will run. Now अब क्या होगा, अब नाउ सेकंड टाइम पे कौन अराइव कर रहा है उसको सीपीयू दिया जाएगा। P3 इज अराइविंग, P3 इज अराइविंग एट 1। यहाँ पर P3 ने अराइव किया और यहाँ तक वेट किया, ठीक है। तो इट विल एग्जीक्यूट फॉर 4 seconds. So till 8 it will execute. Now P1 को CPU allocate किया जाएगा and it will execute for 24 seconds. तो 24 plus 8 कर दीजिए 32 है ना। यहाँ तक P1 को execute करवाए। Now we have to calculate the waiting time of all the processes. So arrival time is 0, 1 and 2. Burst time is 4, 4, 24. Now waiting time. P2 ने कोई P2 का वेटिंग टाइम 0 है क्योंकि 0 पर उसने अराइव किया तो 0 पर उसको सीपीयू एलोकेट कर दिया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम चलते हैं तो भी फॉर्मूला क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम का क्या है, 0 है और अराइवल टाइम भी 0 है तो 0 माइनस 0 0 हो गया, ठीक है। देन P3 को चेक करते हैं। P3 का रिस्पॉन्स टाइम है 4, अराइवल टाइम है 1, 4 माइनस 1 3, ठीक है। P1 का है फिर 8 इज द रिस्पॉन्स टाइम, अराइवल टाइम इज 2 है ना। 8 माइनस 2 6 हो गया। टोटल अराउंड टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं हम, वेटिंग टाइम, ये लिखा है मैंने, वेटिंग टाइम प्लस वर्स्ट टाइम करते हैं हम। तो वेटिंग टाइम, दिस इज वेटिंग टाइम, दिस इज वर्स्ट टाइम, दोनों को ऐड कर दिया। दिस इज 4, दिस इज 7 एंड दिस इज 13। वैसे भी चेक कर सकते हो आप गैंट चार्ट के थ्रू। P2 का टोटल टर्न अराउंड टाइम क्या, 4 पे वो बाहर आ गया तो 0 से 4 दैट मींस 4 सेकंड्स। P3 को चेक करते हैं, P3 8 पर बाहर आ रहा है और अराइवल था उसका 1 पर, तो यहाँ से लेकर उसको इतना टाइम CPU इतना टाइम वो रहा है सिस्टम में। तो 8 माइनस 1 7, इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। और ये P1 32 पर बाहर आ रहा है और वेट कितना किया इसने, 2 पर इसको 2 पर ही अराइव हुआ था, 32 माइनस 2 30। तो इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम 0 plus 3 plus 6 divided by 3, 9 by 3।
तो ये 3 सेकेंड्स आए, ठीक है। नाउ एवरेज टर्न अराउंड टाइम 4 + 7 + 30 डिवाइडेड बाय 3, क्या आ रहा है ये 41 डिवाइडेड बाय 3 करो, क्या आंसर है? 13.66. 13.66, 66. ठीक है। नाउ यू हैव टू कंपेयर, देखिए अब यहाँ वेटिंग टाइम जो है कितना कम हो गया, 3 सेकेंड्स, एंड हियर वेटिंग टाइम इज 16.33 सेकेंड। हर एक प्रोसेस को इतना वेट करना पड़ रहा है ना। यहाँ हमने अगर हम इस तरह से शेड्यूल होता ये सपोज, तो 3 सेकेंड्स ही सिर्फ एक प्रोसेस को वेट करना पड़ता। टर्न अराउंड टाइम 13.66, यहाँ पर है 27 सेकेंड, मतलब एक प्रोसेस कंप्लीटली 27 सेकेंड्स उस पर्टिकुलर, मतलब उसको टाइम लग रहा है अराइव होने के बाद, अराइव होने से एग्जीक्यूट होने तक का टाइम 27 सेकेंड्स लग रहा है एवरेज टाइम। यहाँ पर हमारा टाइम कितना रिड्यूस हो गया, ठीक है। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस एल्गोरिथम। ना कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, फिर अभी टाइम है ना, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करके नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। So this is your homework. There are 6 processes and their arrival time is 6, 3, 4, 1, 2, 5, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि क्वेश्चन में ये बिल्कुल आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में दिया हो कि जो पहले आया हो। यू हैव टू चेक द अराइवल टाइम। P4 का अराइवल टाइम 1, दैट मींस ये सबसे पहले अराइव हुआ, एंड देयर बर्स्ट टाइम इज गिवन एज 5, 8, 6, 2, 3, 4. Same, you have to calculate the average waiting time and average turnaround time using FCFS. So this is your homework. I'll ask in the next class आपके answers क्या आ रहे हैं, ठीक है। And this question you have to include in your tutorial sheet. जो आप tutorial हर week एक tutorial you have to submit. This question you have to include in your tutorial sheet, ठीक है। Now I'm taking the attendance. हम इस क्वेश्चन में मोड हाँ। कौन सा है? नॉन प्रीएम्प्टिव। हाँ, ये तो FCFS लिखा, दैट मींस नॉन प्रीएम्प्टिव है ना। FCFS ये जब स्टार्टिंग किया था, देखो मैंने अब स्टार्टेड FCFS, तो मैंने इसमें 2 चीजें लिख दी थी कि इसमें सिर्फ अराइवल टाइम का ही क्राइटेरिया मेन होता है, व्हाट यू हैव टू कंसीडर, एंड ये नॉन प्रीएम्प्टिव भी होती है, प्रीएम्प्टिव नहीं होती है FCFS, ठीक है। यू कैन नॉट प्रीएम्प्ट एनी प्रोसेस। ओके मैम, थैंक यू मैम। So note down this question, या आप जो भी कर रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो वहां से नोट डाउन करिएगा। मैम जैसे कोई प्रोसेस 0 सेकंड की जगह 1 सेकंड पे आई पहली प्रोसेस, तो मैम उसका वेटिंग टाइम 1 सेकंड होगा या 0 सेकंड?